Unit 7A poem, If by Rudyard Kipling. Rudyard Kipling, 1865 to 1936, was an English author, poet, and journalist. Best known for his works of fiction, including The Jungle Book, Kim Nen, The Man Who Would Be King. He was born in British colonial subcontinent, which greatly influenced much of his writing. Kipling's works often explore themes of British imperialism, adventure, and the experiences of British and subcontinent cultures interacting during the colonial rule. The poem If is one of the best-known poems of Rudyard Kipling. It is a motivational poem which serves as a father's advice to his son on how to live with integrity and courage in a challenging world. Stanza 1. If you can keep your head, when all about you are losing theirs and blaming it on you. If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. If you can wait and not be tired by waiting, or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good nor talk too wise. Stanza 2. If you can dream and not make, dreams your master. If you can think and not make thoughts your aim. If you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same. If you can bear to hear the truth you've spoken twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to, broken, and stoop and build 'em up with worn-out tools. Stanza 3. If you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn of pitch and toss, and lose, and start again at your beginnings, and never breathe a word about your loss. If you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them, hold on. Stanza 4. If you can talk with crowds and not keep your virtue, or walk with at kings nor lose the common touch, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you, but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance, run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you'll be a man, my son. Okay, students, let's go through the translation of the poem. Although the translation of the poems don't come in the paper, but we'll surely discuss it for the better understanding. And along with this, we'll also discuss the main themes and the figure of speech used by the poet. So let's get started. Okay, students, ये जो तमाम पोएम है कुछ नसीहतों पे बेस्ड है एक बाप की अपने बेटे से कि कैसे वो अपने बेटे को इस चैलेंजिंग दुनिया में, इस मुश्किलात भरी दुनिया में कैसे इज़्ज़त के साथ, डिग्निटी के साथ, इंटेग्रिटी के साथ रहने की नसीहत कर रहा है और उसका रिवॉर्ड क्या है, दैट इज़ बीइंग डिस्क्लोज्ड एट द एंड ऑफ द पोएम। तो पूरी ये जो नज़म है कॉन्टेक्चुअल क्लू पे बेस्ड करती है। कॉन्टेक्चुअल क्लू मीन्स कि हमें एक दो लाइंस पढ़ के नहीं पता चलता, हमें उसके क्लूज़ नेक्स्ट आगे मुख्तलिफ स्टैंजाज में ढूंढने पड़ते हैं कि एक्चुअली शायर कह क्या रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द ट्रांसलेशन ऑफ दिस पोएम। इफ़ यू कैन कीप योर हेड मीन काम, पुरसकून, इफ़ मीन अगर। सो द फादर एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द पोएम, द पोइट इज़ स्टार्टिंग द पोएम विद द वर्ड इफ़। इफ़ का मतलब ही है कंडीशन, कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, अगर तुम गुस्सा नहीं करोगे तो उसका क्या रिवॉर्ड है, अगर दुनिया तुम्हारे ख़िलाफ़ झूठ बोल रही है, तुम पे ब्लेम लगा रही है, तो तुमने क्या करना है, तुम क्या कर सकते हो। इफ़ अगर, यू कैन कीप योर हेड, अगर तुम पुरसकून रह सकते हो, काम रह सकते हो, व्हेन ऑल अबाउट यू, जब सब जो आपके इर्द गिर्द हैं, आर लूजिंग देयर, वो अपना काबू खो रहे हैं, वो अपना कंट्रोल खो रहे हैं, एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, और तुम्हें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तुम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। In the first two lines, the poet is saying that, means the father is advising to his son that कि अगर जब तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग अपना कंट्रोल खो रहे हों, वो गुस्से में हो और तुम्हें इल्ज़ाम दे रहे हों, तो तुम अगर पुरसकून रह सकते हो,
इफ़ यू कैन ट्रस्ट, अगर तुम एतमाद कर सकते हो, योर सेल्फ, खुद पर, व्हेन ऑल मैन, हर शख्स, जब तमाम लोग, डाउट यू, तुम पर शक करते हैं, बट मेक अलाउंस, लेकिन मद्देनज़र रखो, उन पर भी तवज्जो दो, फॉर देयर डाउटिंग टू, उनके खदशात पर भी। एंड इन द नेक्स्ट टू लाइन्स ही इज सेइंग दैट अगर तुम खुद पर एतमाद रखते हो जबकि सब लोग तुम पर शक करते हो, लेकिन उनके जो खदशात हैं उन पर भी तवज्जो दो। एंड द नेक्स्ट वन इज़ इफ़ यू कैन वेट, अगर तुम इंतज़ार कर सकते हो, मीन सब्र कर सकते हो, एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, और इंतज़ार करते या सब्र करते नहीं थकते, और बीइंग लाइड अबाउट, और जब आपके बारे में झूठ बोला जा रहा हो, डोंट डील इन लाइज, तो आप भी झूठ से काम ना लो, और बीइंग हेटेड, और जब आपसे नफ़रत की जा रही हो, डोंट गिव वे टू हेटिंग, तो वे में रास्ता, हेटिंग में नफ़रत, तो आप नफ़रत को रास्ता मत दो। हेयर द पोइट इज सेइंग दैट कि जब आप सब्र कर सकते हो और सब्र करते आप थकते नहीं, जब आपके बारे में झूठ बोला जा रहा हो और जब आपसे नफ़रत की जा रही हो, तो आप भी झूठ से काम ना लो और ना ही नफ़रत का रास्ता इख्तियार करो। एंड येट डोंट लुक टू गुड, लेकिन ज़्यादा अच्छा भी मत बनो। नॉट टॉक टू वाइज, और ज़्यादा अक्लमंदी से भी बात मत करो। सो हेयर द फर्स्ट स्टैंजा इज़ ओवर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। इफ़ यू कैन ड्रीम, अगर तुम ख्वाब देख सकते हो, यानी कि अगर तुम बड़े बड़े अज़ाइम रखते हो, एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, लेकिन ख्वाबों को अपना आका नहीं बनने देते, यानी कि उन ख्वाबों को अपने ऊपर गलबा नहीं पाने देते, ओवरकम नहीं होने देते। इफ़ यू कैन थिंक, अगर तुम सोच सकते हो, एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, लेकिन अपने ख़यालात को अपना मकसद नहीं बनाते। ऑल्दो कि अगर हम अपनी रियल लाइफ में भी देखें तो हम ख्वाब देखते हैं और उन ख्वाबों को अचीव करने के लिए हम इतने पागल हो जाते हैं कि हम फिर ये देखते ही नहीं कि हम अच्छा रास्ता इख्तियार कर रहे हैं या बुरा रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि वो हम उन ख्वाबों को अपना आका बना लेते हैं। मीन्स कि वो ख्वाब, हम ख्वाबों को कंट्रोल नहीं करते, ख्वाब हमें कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, हमारी सोचें हमें कंट्रोल करना शुरू कर देती हैं। हम अपने मकसद को अचीव करने के लिए, उन ख्वाबों को पाने के लिए हम इतने पुरज़म हो जाते हैं कि हमें अच्छे और बुरे का फ़र्क पता ही नहीं चलता। तो यही मकसद है इस 2 लाइनों का कि बाप अपने बेटे से कह रहा है, एक्चुअली द पोइट इज़ सेइंग, बट वी कैन रिलेट, वी कैन टॉक अबाउट दैट, अ फादर इज़ सेइंग टू हिज सन कि ख्वाब देखो, अगर तुम देख सकते हो दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन उनको ओवरकम ना होने दो अपने ऊपर। और अगर तुम सोच सकते हो लेकिन ख़यालात को अपना मकसद नहीं बनाते। इफ़ यू कैन मीट, अगर तुम मिल सकते हो, यानी कि अगर पा सकते हो, ट्रायम्फ, कामयाबी, एंड डिज़ास्टर, और नाकामी, एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स, इम्पोस्टर मीन जालसाजों से, जस्ट द सेम, एक जैसा। सो इन दीज 2 लाइन्स द फादर इज सेइंग दैट, क्योंकि ज़िंदगी का हिस्सा है ये नाकामी और कामयाबी, यानी कि कोई भी हम अगर काम स्टार्ट करते हैं, अगर कोई भी ड्रीम देखते हैं या कोई भी हमारा एम होता है, तो उसमें देर आर 2 ways, आइदर वी कैन गेट सक्सेस और वी कैन फेल, तो या तो हमें कामयाबी मिलेगी तो या नाकामी। तो यही फादर कह रहा है अपने बेटे से कि अगर ज़िंदगी में तुम्हें कामयाबी मिलती है या नाकामी मिलती है, तो तुम इन दोनों से ही एक जैसा सलूक करते हो, यानी कि नाकामी में भी नाउमीद नहीं होते और कामयाबी मिलती है तो यू डोंट फील योर सेल्फ ओवर द मून, आप एरोगेंट नहीं होते, आप ज़मीन पर रहते हो, ग्राउंडेड रहते हो, यानी कि आपके लिए नाकामी और कामयाबी एक जैसी हैं। ये जालसाजी हैं, मीन इम्पोस्टर क्यों कहा गया है यहाँ पे, क्योंकि एक वक्त एक जैसा नहीं रहता। अगर आज कामयाबी मिली है तो नेक्स्ट नाकामी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये इमोर्टल नहीं है, ये हमेशा रहने के लिए नहीं है, इन्होंने कभी ना कभी ख़त्म हो जाना होता है। एंड इफ़ यू कैन बेयर, अगर तुम बर्दाश्त कर सकते हो, टू हेयर, सुनना, द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, वो सच जो तुम्हारे बारे में कहा गया है। ट्विस्टेड बाय नेव्स, ट्विस्टेड मीन उसे तोड़ मड़ोड़ दिया है, नेव्स मीन दगाबाजों ने, टू मेक अ ट्रैप, तुम्हें फंसाने के लिए, फॉर फूल्स, बेवकूफ़ों ने, यानी कि जो तुमने सच बोला लेकिन कुछ दगाबाजों और बेवकूफ़ों ने तुम्हें फंसाने के लिए उसे तोड़ मड़ोड़ के पेश किया है। और वॉच द थिंग्स, और अगर तुम देख सकते हो वो चीज़ें, यू गिव योर लाइफ, जिन्हें तुमने अपनी ज़िंदगी दी, यानी कि जो तुम्हें बहुत प्यारी थी, ब्रोकन, टूटता हुआ, एंड स्टूप, तुम झुक जाओ, एंड बिल्ड दैम, EM लिखा हुआ है अपोस्ट्रोफी लगा के ऊपर, तो ये इसका मतलब दैम, तो उन्हें तामीर करो, यानी कि उन्हें जोड़ लो,
अब विद worn आउट टूल्स, worn आउट मीन टूटे फूटे टूल्स आलात से, यानी कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं कि हमें वो बहुत मेहनत की होती है उनको हासिल करने के लिए, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको अचीव करने के लिए हमने सख्त मेहनत की होती है, लेकिन वो हमसे छिन जाती हैं या टूट जाती हैं। व्हाट द फादर इज़ सेइंग, तो झुक जाओ, उन्हें दोबारा तामीर करो। हालात आपके पास जैसे भी हैं, चाहे वो worn आउट हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं, उन्हें बैठ के उन्हें झुक कर दोबारा से तामीर करो। So here the second stanza is also over. Now move to the third one. If you can make one heap of, अगर तुम बना सकते हो ढेर of all your winnings, अपनी तमाम जीतों का, यानी कि ज़िंदगी में जो भी तुमने अचीवमेंट हासिल की हैं, जितनी दफ़ा तुमने विन किया है, अगर तुम उनका ढेर बना सकते हो, एंड रिस्क और ख़तरे में डाल सकते हो, ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस, यानी कि एक मौका पर आप उन्हें ख़तरे में डाल देते हो, एंड लूज़ और खो देते हो, एंड स्टार्ट अगेन और दोबारा शुरू करते हो, एट योर बिगनिंग इब्तदा से, यानी कि ज़िंदगी में अगर तुमने बहुत सी कोई अचीवमेंट हासिल की हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि आप उन्हें खो देते हो, तो आप दोबारा से शुरू करो। एंड नेवर ब्रीथ, ब्रीथ मीन से, कहना, वैसे सांस लेना होता है लेकिन यहाँ होगा से, और कभी मत कहना अ वर्ड अबाउट योर लॉस, अब एक लफ्ज़ भी अबाउट योर लॉस, अपने नुकसान के बारे में, कि जो भी ज़िंदगी में तुमने नुकसान हासिल किया है तो उसके बारे में एक लफ्ज़ भी ना कहना। इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट, अगर तुम धकेल सकते हो अपने दिल को, एंड नर्व एंड सिन्यू, सिन्यू नस को कहते हैं, इंसानी बॉडी का हिस्सा है, अगर तुम अपने दिल को, अपने असाब को या अपनी नस को धकेल सकते हो, बेसिकली यहाँ पे फादर कहना कुछ और चाह रहा है, लेकिन एग्जाम्पल वो दिल की और असाब की इसलिए यूज़ कर रहा है कि अगर मेहनत करते हैं, हम दिल लगा के कुछ अचीव करते हैं, हम वो अपना दिल मार लेते हैं बहुत सी चीज़ों का, असाब मीन ताकत, फोर्स लगाते हैं किसी को हासिल करने की, लेकिन उसमें भी हमें नुकसान उठाना पड़ता है, तो इंसान डिसअपॉइंटेड हो जाता है। तो यही यहाँ पे फादर कह रहा है कि तुमने अपने नुकसान के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं कहना, चाहे जो तुमने हासिल करने में अपने दिल लगाया हो, फोर्स लगाई हो। टू सर्व योर टर्न आउट, सर्व योर टर्न आउट मीन अपना काम जारी रखना, लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, जब वो चले जाएं। आई थिंक बेसिकली वो कामयाबियों की बात कर रहा है कि उनके चले जाने के बाद भी तुम अपना काम जारी रखना, यानी कि बैठना नहीं आराम से। एंड सो होल्ड ऑन, होल्ड ऑन मीन जारी रखना, व्हेन देयर इज़ नथिंग इन यू, जब तुम्हारे पास कुछ ना हो, एक्सेप्ट द विल, एक्सेप्ट मीन सवाए, विल मीन कुव्वत इरादी, ताकत, यानी कि जब तुम्हारे पास कुछ ना बचे सवाए कुव्वत इरादी के, और कुव्वत इरादी अगर इंसान के पास है तो आई थिंक उसे दोबारा से अचीव करने का एक हौसला रहता है, तो वो इंसान कभी भी नाकाम नहीं होता। अगर वो कुछ खो भी देता है तो उनको दोबारा से अचीव कर सकता है। तो विल पावर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज़ द की टू सक्सेस इफ़ अ पर्सन कैन हैव, विच सेज टू देम, जो उन्हें कहती है होल्ड ऑन, जारी रखो। सो हियर द थर्ड स्टैंजा इज़ ऑल्सो ओवर। नाउ मूव टू द लास्ट एंड द फोर्थ स्टैंजा। इफ़ यू कैन टॉक विथ क्राउड्स, अगर तुम हजूम के साथ बात कर सकते हो, एंड कीप योर वर्च्यू, और बरकरार रखते हो अपनी नेकी को, खूबी को, और वॉक विथ किंग्स, अगर तुम बादशाहों के साथ चलते फिरते हो, नोर लूज़ द कॉमन टच, लेकिन आम आदमी से अपना राब्ता मत तोड़ना। सो व्हाट द पोइट इज़ सेइंग एक्चुअली इन द फर्स्ट लाइन ही इज़ ट्राइंग टू से दैट, कि जैसे हम लोगों से बात करते हैं तो वो कह रहा है कि अपनी आइडेंटिटी मत खोना, चाहे आप जितनी भी हजूम से बात कर रहे हो, अपने आप में एक वर्च्यू रहने देना, नेकी रहने देना। और अगर तुम बादशाहों के साथ भी बात करते हो, इंसान बेसिकली एरोगेंट हो जाता है व्हेन ही अचीव समथिंग हाई इन हिज लाइफ। ये नेचर है उसकी कि इंसान अगर कोई हाई स्टेटस पे पहुंच जाए, बादशाहों के साथ उसके ताल्लुकात हों, तो वो आम इंसान को, आम लोगों को बहुत ही कमतर समझना शुरू कर देता है और ख़ुद को सुपीरियर और दूसरों को इन्फीरियर समझना शुरू कर जाता है। देयर द पॉइंट इज सेइंग, अगर चाहे बादशाहों के साथ भी तुम्हारे ताल्लुकात हों, उनके साथ भी तुम्हारा उठना बैठना हो जाए, तुम उनके साथ चलते फिरते हो, तो भी जो कॉमन टच है, आम आदमी से अपना राब्ता मत तोड़ना, उनके साथ अपनी नेकी बरकरार रखना, एरोगेंट मत हो जाना, यानी कि गुरूर ना करना शुरू कर देना। इफ़ नीदर फोज, फोज मीन दुश्मन, और अगर तुम्हें ना ही दुश्मन नुकसान पहुंचा सकते हैं, नॉर लविंग फ्रेंड्स, और ना ही तुम्हारे जो दोस्त हैं, कैन हर्ट यू, यानी कि नुकसान पहुंचाना,
इफ़ ऑल मैन काउंट विद यू, अगर तमाम लोग तुम पर अपना शुमार करें यानी कि तुम्हारे साथ हों, बट नन टू मच, लेकिन कोई भी ज़्यादा ना हो तुम्हारे साथ। इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट, फिल मीन पूरा कर सकते हो, अनफॉरगिविंग मीन ना माफ़ करने वाला यानी कि जालिम या क्रूल, मिनट लम्हे को, अगर तुम एक जालिम लम्हे को पूरा कर सकते हो, व्हाट डज दैट मीन, विल गेट टू नो इन द नेक्स्ट लाइन। विथ 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस, फासले को, रन, दौड़ को। सो द होल क्रक्स ऑफ दीज टू लाइन्स, द फादर इज़ ट्राइंग टू से दैट, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी चैलेंजिंग वर्ड, तो उसमें 60 सेकेंड को भी अगर तुम काबिल अमल बना सकते हो यानी कि कुछ अच्छा कर सकते हो, दैट इज़ अ गुड थिंग। एंड द लास्ट टू लाइन्स, दैट इज़ द होल क्रक्स, जो ऊपर सारा कुछ जो फादर ने कहा है अपने बेटे को कि अगर तुम पुरसकून रह सकते हो जब लोग तुम पर अपना काबू खो रहे हों, वो तुम्हें इल्ज़ाम दे रहे हों, अगर तुम लोग तुमसे नफ़रत कर रहे हों, तुम्हारे बारे में झूठ बोल रहे हों, और अगर तुम्हें नाकामियों का सामना करना पड़े, कुछ चीज़ें जीत कर उनको खो दिया हो, तुम्हें नुकसान का सामना करना पड़ा हो, तो अगर इसके बावजूद तुम अगर ये कर सकते हो, अपनी विल पावर नहीं खोते, तुम दोबारा झुक के उसको तामीर कर लेते हो, तो उसका रिवार्ड क्या है। योर इज़ द अर्थ, फिर ये दुनिया तुम्हारी है, एंड एवरी थिंग दैट्स इन इट, और हर वो चीज़ जो इसमें मौजूद है, एंड विच इज़ मोर, और इससे भी अहम चीज़ ये है, यू विल बी अ मैन माई सन, तुम एक इंसान बनोगे मेरे बेटे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द फिगर्स ऑफ स्पीच एज वेल। फिगर ऑफ स्पीच मीन्स सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है या एलिट्रेशन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द राइमिंग वर्ड्स एंड राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम। Rhyming words mean the words which has the same sound and mainly they come at the end of the each line. As you can see, the very first word you is rhyming with the next line word, that is again you, you, third line you, and it is rhyming with the fourth line to, waiting, hating, lies and wise. Why I have written this I'll talk about you later. Let's see the rhyming words in the next stanza. Master, disaster, aim, same, spoken, broken, fools, tools. These are the rhyming words in the second stanza. The third stanza, winning, beginnings, toss, loss, sino, you, gone, on. Now let's move towards the last stanza. And the rhyming words are virtue, you, touch, much, minute, in it, run, sun. So these are the rhyming words. Let's talk about the rhyming scheme. Rhyming scheme क्या होती है कि कौन से जो words हैं वो किस line के साथ, line A है, B है, C है, उसके साथ sound उनका match हो रहा है. So the rhyming scheme is इन द फर्स्ट स्टैंजा ए। क्यों है, हमने लाइंस नहीं गिननी, राइमिंग जो स्कीम होती है वो लाइंस गिन के नहीं उसको काउंट किया जाता। बेसिकली जो वर्ड उसके साथ राइम हो रहा है वो लाइंस सेम होती हैं। जैसे फर्स्ट साउंड है, फर्स्ट राइमिंग वर्ड है यू, तो ये ए कंसीडर होगा, तो सेकंड लाइन में भी है यू, यानी कि दोनों ही ए ही कंसीडर होंगे, ए और बी नहीं, क्योंकि दोनों का साउंड सेम है। नेक्स्ट यू, अगेन ये ए जो फर्स्ट टू लाइंस हैं उन्हीं के साथ साउंड इनका जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो राइम कर रहे हैं फर्स्ट टू लाइंस के साथ ही, इसीलिए इसको भी ए ही कंसीडर किया जाएगा। द फोर्थ लाइन में जो टू है वो भी यू के साथ ही राइम कर रहा है, तो ये भी ए ही कंसीडर होगा। तो इसी तरह फर्स्ट फोर लाइंस की राइमिंग स्कीम क्या होगी, ए एंड ए। और इसके बाद जब साउंड चेंज होता है तब लेटर चेंज होता है। अगेन वेटिंग, लेटर बी लिखा जाएगा। लाइज, क्योंकि ये वेटिंग के साथ अब लाइज राइम नहीं कर रहा, इसीलिए लाइज को सी नाम दिया जाएगा। वेटिंग के साथ जो राइम कर रहा है वर्ड वो है हेटिंग, तो इसको भी बी कहा जाएगा। अगेन लाइज के साथ जो राइम कर रहा है साउंड वो है वाइज, इसीलिए इसका नाम भी सी रखा जाएगा इस लाइन का। तो जो लास्ट फोर लाइंस हैं उसकी राइम स्कीम क्या होगी, बी सी एंड बी सी, क्योंकि बी का जो राइमिंग साउंड है वो फोर्थ लाइन में है, लेकिन बी के साथ जो नेक्स्ट लाइन में राइमिंग वर्ड है
वो चेंज है, इसलिए उसका नाम चेंज हो गया। तो फर्स्ट स्टैंजा की राइमिंग स्कीम क्या होगी? फर्स्ट 4 लाइन्स सेम राइमिंग वर्ड्स हैं, तो साउंड है उनके ए और नेक्स्ट जो 4 लाइन्स हैं उनका है बी सी एंड बी सी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा। अब नेक्स्ट स्टैंजा है तो हम नेक्स्ट लेटर यूज़ नहीं करेंगे। हर स्टैंजा में अगेन लेटर ए से ही राइमिंग स्कीम स्टार्ट होती है। मास्टर ए हो गया। एम सर राइम नहीं कर रहा, इसलिए इसका नाम बी रख दिया। मास्टर के साथ राइम क्या कर रहा है? डिज़ास्टर, तो इसीलिए इसका नाम भी ए लेटर रखा जाएगा। और एम के साथ क्या राइम कर रहा है? सेम, तो दोनों बी हो जाएंगे। स्पोकन, अब ये जो पहले चारों वर्ड्स इनके साथ तो ये राइम नहीं कर रहा, इसलिए अब लेटर चेंज हो जाएगा, सी रख देंगे। फूल्स अगेन एक नया साउंड है, तो इसलिए इसका नाम डी हो जाएगा। ब्रोकन राइम कर रहा है स्पोकन के साथ, ये सी था तो ये भी सी होगा। अगेन टूल्स राइम कर रहा है फूल के साथ, इसीलिए ये दोनों डी हो जाएंगे। तो राइमिंग स्कीम क्या होगी सेकंड स्टैंजा की? ए बी, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लाइन के राइमिंग वर्ड सेम नहीं है, इसलिए ए बी। नेक्स्ट ए बी सी डी एंड सी डी। इसी तरह थर्ड और फोर्थ स्टैंजा की जो राइमिंग स्कीम है वो सेम है जैसा कि सेकंड स्टैंजा में है, लेकिन फर्स्ट स्टैंजा की राइमिंग स्कीम डिफरेंट है थोड़ी सी। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टैंजा की राइमिंग स्कीम सेम है। लेट्स टॉक अबाउट द अदर फिगर्स ऑफ स्पीच like simile, metaphor, personification and alliteration. So here comes alliteration in the first stanza, line 6, like don't deal, the repetition of same consonant sound and the repetition of consonant D, don't deal. So here the alliteration is used in the first stanza, 6th line. Next alliteration is also used in the last stanza, the third last line, 62nd. Here the repetition of consonant S, 60. It starts with S, and again the next word seconds is it's also start with S. So here the alliteration is being used. Next talk about personification. Personification is used here in the second stanza, third और fourth line में, यानी कि ट्रायम्फ और डिज़ास्टर ये कोई लिविंग थिंग्स नहीं है। इम्पोस्टर जो वर्ड यूज़ होता है जालसाज़ों के लिए, ये इंसानों के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पोइट ने ट्रायम्फ और डिज़ास्टर के लिए, नाकामी और कामयाबी के लिए यूज़ किया है, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, लिविंग थिंग्स नहीं है। तो दैट्स वाई हेयर द पर्सोनिफिकेशन इज़ बीइंग यूज्ड। लेट्स टॉक अबाउट मेटाफर। मेटाफर इज़ यूज्ड इन द थर्ड स्टैंजा। इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स, एज मेटाफर इज़ अ डायरेक्ट कंपैरिजन, यानी कि यहाँ पे एक पोइट डायरेक्ट कंपेयर कर रहा है तमाम जो इसकी विनिंग, जो इसकी अचीवमेंट्स हैं उनको एक ढेर के साथ। लेकिन अगर ये सिमिली होता तो इट कैन बी इफ़ यू कैन गैदर ऑल योर विनिंग्स लाइक अ हीप ऑफ ट्रेजर, तो उसमें लाइक और एज का वर्ड यूज़ होता, लेकिन यहाँ पे पोइट डायरेक्टली कंपेयर कर रहा है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द थीम्स द पोइट हैज़ यूज इन दिस पोइम। द फर्स्ट वन इज़ सेल्फ कंट्रोल एंड पेशेंस। जैसा कि पहले ही स्टैंजा में था कि जब तुम्हारे इर्द गिर्द के लोग तुम्हें ब्लेम कर रहे हो, तुम पर अपना कंट्रोल खो रहे हो और तुम काम रह सकते हो, दैट इज़ सेल्फ कंट्रोल एंड पेशेंस। एंड द सेकेंड वन इज़ परसवेरेंस। परसवेरेंस मीन मुस्तकिल मिजाजी, यानी कि आप गिव अप नहीं करते अपनी ज़िंदगी में, मुश्किलात आती हैं उनका सामना करते हो। अगर आप में विल पावर है तो आप हौसला नहीं हारते, यू कीप ऑन वर्किंग हार्ड। तो गिव अप ना करना ज़िंदगी में, दैट इज़ कॉल्ड परसवेरेंस। नेक्स्ट है मेच्योरिटी एंड मैनहुड। डेफिनेटली मेच्योरिटी और मैनहुड, द थीम ऑफ दिस पोइम। मेच्योरिटी ही इंसान में हो तो ही वो मुश्किलात का सामना करता है, तो ही वो दूसरों के इल्ज़ामात को बर्दाश्त करता है, और एक मैनली पावर अगर में है, आप में है, तो ही आप दुनिया की मुश्किलात का इस चैलेंजिंग वर्ल्ड में सर्वाइव कर सकते हो। नेक्स्ट है राइचियसनेस। राइचियसनेस मीन नेकी। सो इन द लास्ट स्टैंजा द पोइट हैज सेइंग दैट कि अगर तुम बादशाहों के साथ भी चलते फिरते हो, आप बड़े बड़े हजूम से भी बात करते हो, तो भी आप अपना जो है अपनी नेकी को मत खोना, अपनी आइडेंटिटी को मत खोना, आम इंसान से अपना राब्ता मत खोना, उनसे एरोगेंट होकर बात नहीं करना। तो दैट इज़ राइचियसनेस। इन द फर्स्ट स्टैंजा एज वेल, जैसा कि लोग आप पर इल्ज़ाम दे रहे हो, आपसे झूठ बोल रहे हो, आपसे नफ़रत कर रहे हो, तो भी आप काम रहते हो, लोगों से नफ़रत नहीं करते, उनके साथ झूठ नहीं बोलते,
ये भी राइचसनेस थीम का ही पार्ट है। लास्ट इज स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक दैट वी कैन आइडेंटिफाई इन द थर्ड एंड फोर्थ स्टैंजा। थर्ड स्टैंजा दैट इज़ कि अगर आप अपने तमाम जो विनिंग्स हैं उनको खो देते हो, लेकिन अब दोबारा से बिगिनिंग से, इब्तदा से, यानी कि अपनी खोई हुई चीज़ों को हासिल करने के लिए काम करते हो, विल पावर नहीं खोते आप, तो कैरी ऑन योर वर्क, अपना काम जारी रखते हो, दैट इज़ स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक। इसी तरह फोर्थ स्टैंजा में जैसे इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट विद 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, यानी कि अब इस चैलेंजिंग दुनिया में 60 सेकेंड के लम्हे को भी अगर काबिल अमल बना सकते हो, सो दैट्स कॉल्ड स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक। So that was the fifth and the last theme. I think you have understood the poem well. Now let's move towards the paraphrasing of this poem. First of all, let's talk about some of the important things to paraphrase a stanza. The first one is reference to context. आप उसे इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं, रेफरेंस अलहदा से हेडिंग देके और कॉन्टेक्स्ट अलहदा से। What does mean by reference? Reference, if we talk about the Urdu meaning, it means hawala. So while writing reference, we must write the name of the poem and the poet. As you can see the very first line, this stanza is from the poem If by Rudyard Kipling. यानी कि हमने पोइट का नाम भी लिखना है और हमने पोएम का नाम भी लिखना है। आप साथ भी लिख सकते हैं और इसको अलहदा से भी लिख सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट, context means sayako sabak and how to write it. While writing context must keep in mind when and why the certain things are said. यानी कि कॉन्टेक्स्ट लिखते हुए हमने ये माइंड में रखना है कि ये लाइंस जो हैं स्टैंजा की कब और क्यों कही गई थी। अब नेक्स्ट वी हैव पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग मीन तशरीह करना, यानी कि ये जो स्टैंजा दिया गया है इन तमाम लाइंस को हमने पैरा की फॉर्म में लिखना है। ये वर्ड्स की फॉर्म में लिखा हुआ है और जब हमने पैराफ्रेजिंग करनी है तो इसको एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है। सेकंड थिंग कि अपने वर्ड यूज़ करने हैं, यानी कि सेम वर्ड्स यूज़ नहीं करने, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके अपने सिनोनिम्स यूज़ करने हैं। अपने वर्ड्स का मतलब ये नहीं कि यू कैन गिव योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, आप अपनी बीच में एडिशन करना शुरू कर दें ऐसी बातों का जो स्टैंजा में मौजूद नहीं है। बात वही करनी है रेलिवेंट हो स्टैंजा से, लेकिन you can add the synonyms of the difficult words. And second thing, write in the paragraph. Okay, now let's move towards the paraphrasing of the first stanza. And the first stanza is, if you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too, if you can wait and not be tired by waiting, or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good nor talk too wise. So while doing the paraphrasing, first of all you should underline the difficult words, and if you know the meanings, if you know the synonyms of these words, write down in the stanza. As keep your head, it means calm, losing mean to lose control, blaming means criticize, doubt means uncertain, allowance means approval, again tired means fatigue, weariness, drained. Now comes to reference to the context. This stanza is from the poem If by Rudyard Kipling, that is the reference, and the context is, in this part the poet advises his son how to stay calm and strong when others around him lose control or blame him unfairly. And now move towards the paraphrasing. In this stanza, the poet advises his son to stay calm and composed when others panic or blame him unfairly. He should trust himself even if others doubt him. You can also use the same words if you don't know the meaning, but also try to understand why they doubt. Patience is important. He should wait without frustration. If people lie about him, he should not lie in return. If people hate him, he should not respond with hatred. Also, he should remain humble. He shouldn't try to show off or act too clever. Now, move to the second stanza. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim,
If you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same, if you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to, broken and stoop and build them up with worn out tools. Reference to context of the second stanza is there is no need to write the reference again if you're writing it as a homework, but if you are writing reference to context in a paper, then you must write it. I didn't write it here because it was already written and there is no need to repeat the line. So that's why let's talk about the context. The context is this stanza continues the advice to the son. The poet talks about controlling dreams, thoughts, emotions, and how to deal with both success and failure equally. And the paraphrasing is here the poet advises his son to dream big but not be controlled by those dreams. He should think wisely but not become lost in overthinking. Life brings both success, triumph, and failure, disaster. But he must treat both equally as neither is permanent. If someone distorts his honest words to trick others, or if his hard work is destroyed, he should not lose heart. Instead, he must gather courage and start rebuilding with whatever little strength and resources he has. The third stanza is if you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn of pitch and toss and lose and start again at your beginnings and never breathe a word about your loss. If you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them, hold on. Reference to context, mainly the context is this stanza talks about taking risk, accepting losses bravely, and keeping strong even when you are exhausted. The poet teaches resilience and inner strength. And the paraphrasing is in this stanza, Kipling talks about the courage to take risks. He says a person should be brave enough to risk everything for a greater cause. Even if he loses, he should be strong enough to start all over without complaining. He must push himself beyond his physical limits, using sheer willpower to keep going. When everything else, body strength and energy has failed, the key is inner strength and determination. Here comes the last stanza, stanza number 4. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings nor lose the common touch, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you, but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you will be a man, my son. Reference to context. In the final stanza, the poet gives advice on dealing with people of all types and staying true to yourself. He ends up by saying, if you do all this, you will achieve greatness and maturity. Let's talk about the paraphrasing. In the final stanza, Kipling tells his son to be humble with ordinary people and also stay grounded when with powerful ones. He should not let enemies or even close friends hurt his emotions deeply. He must treat everyone equally, valuing them but not depending too much on anyone. He should make the best use of every moment of his life. If he can do all this, then he will succeed in life and, more importantly, become a complete and mature human being, a true man. Okay, students, that's all from today's lecture. I'll see you in the next video. Till then, Allah Hafiz.